تراش کرتی ہے، جناب ملاقے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مکان گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بڑے سے بڑے بندے سے بھی پوچھو، بارش کو کوئی رحمت نہیں کہتا. کیوں؟ مزاحمت بن چکی ہے. اب دعائیں ہوتی ہیں کہ یہ رک جائے تاکہ ہم بچ جائیں. میں صرف بتاتا ہوں، اولاد نعمت ہے، لیکن وہی اولاد جب بےعزتی کا سبب بن جائے تو کیا خیال ہے؟ صرف مثال دے رہا ہوں. لیکن زمین کے اوپر آسمان کے نیچے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے والوں، ذرا غور تو کرو. آمنہ کے لال کے روپ میں رب العالمین نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی وہ ہر حال میں رحمت ہی رحمت، ہر حال میں رحمت. تو ہم تو زندگی گزارتے ہیں نا، قبر میں جائیں گے تو سوال ان کے بارے میں. کیوں؟ اذان میں صاحب نام ان کا، قرآن میں آیات ان پر نازل ہو رہی ہیں اور انہی کا بیان، ان کی اداؤں کا ذکر قرآن میں، اذان میں، نماز میں. نماز ساری پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں نماز مکمل ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین میری ہر قسم کی عبادت تیرے لیے ہے. لیکن عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے ابھی نماز قبول نہیں ہوگی، آگے فیصلہ ہونے والا ہے، آگے فیصلہ ہونے والا ہے. در و دیوار کو گواہ بنا کر یا نبی کے نعرے لگانے والوں، حالت نماز میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کا معنی بھی یہی ہے، یا نبی آپ پر سلام ہو، یا نبی آپ پر سلام ہو. ہم جو نماز کے اندر آہستہ بولتے ہیں، جلوس میں آ کر ذرا زیادہ بولتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ خوشی کا اظہار ہے، شکر کا اظہار ہے، نعمت کی تحدیث نعمت کا اظہار ہے کہ ہاں رب العالمین تو نے بڑا کرم فرمایا، تو نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا. یہ دیکھو نا، یہ چھوٹا سا پنڈ ہے ہمارا، ہم یہاں کتنے کو دکھا رہے ہیں؟ ہم یہاں کے لوگوں کو نہیں دکھا رہے. ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ نگہبانی کر رہے ہیں سارے پروگرام کی. خدا کی قسم آج ہم دن منا کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا نگہبان کون ہے. ہم بتا رہے ہیں ہم کس کے بھکاری ہیں، کس کے دروازے سے ہمیں خیر ملتی ہے، کون ہے ہمارا لجپال، کون ہے ہماری دستگیری کرنے والا، کس کے دامن سے وابستہ ہے ہم لوگ، کون ہے ہمارے اوپر نگاہ کرم کرنے والے، کن کے صدقے میں ہمیں خیرات مل رہی ہے، کن کے دروازے کے ہم دریوزہ گر ہیں، کن کے دروازے کے ہم بھکاری ہیں. ارے ہم ہی نہیں، ہمارے باپ بھی یہی بتاتے رہے ہیں، ہمارے دادا بھی یہی سناتے رہے ہیں، ہمارے مرشدین کاملین بھی یہی بتاتے جا رہے ہیں. نیریاں والے ہیں تو رخ مدینے کی طرف، موڑا والے ہیں تو رخ مدینے کی طرف، داتا علی اجمیری ہے تو رخ مدینے کی طرف، خواجہ اجمیری ہے تو رخ مدینے کی طرف، سائی سہری سرکار ہے تو رخ مدینے کی طرف. یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں تم ہمارے دروازے پر، ہم مصطفیٰ کے دروازے پہ. نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے. بس یہ عقیدہ پکا، ہمارا وہ نبی کا جو ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. جو ادھر ادھر جائے پھر داڑھی نہیں دیکھتے، جو بے ادبی کرے جبہ نہیں دیکھتے، جو گستاخی کرے دستار نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کا پیار دیکھتے. بس یہی عقیدہ رکھو اور یہ یاد رکھو، نئی چیزیں استعمال کرو. مکان ملا ہے نا، اچھا خوبصورت رہو، اچھا لباس ملا ہے پہنو، گاڑی مل گئی ہے تو چڈی کے بجائے گڈی پہ بیٹھو، کوٹھی میں چلے جاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو. ہر نئی نعمت جو رب نے دی ہے اسے خوش ہو کے استعمال کرو، لیکن عقیدہ پرانا، عقیدہ پرانا. نیا عقیدہ کوئی لینے کی ضرورت نہیں جسے 150-200 سال ہوئے ہو. ہمیں داتا علی اجمیری والا عقیدہ کافی ہے، ہمیں اجمیری والا عقیدہ کافی ہے، ہمیں اولیاء کاملین والا عقیدہ کافی ہے. اور اس عقیدے کو وراثتاً اپنے آنے والی نسل میں دینا ہے. یہ جو بچی آج پڑھ رہی ہے نا، بچے، یہ ہمارا فیوچر ہے.
इनको साथ लेके आगे बढ़ना है, ताकि हमारी जब आंखें बंद हो कब्र में जाएं, कब्र में पहुंचे, कब्र में पहुंचे और कब्र में मन रब्बों का सवाल हो, तेरा रब कौन है। ये रब्बों का सवाल का जवाब उस वक्त आएगा जब जमीन के ऊपर सुभान रब्बियल आला पढ़ोगे। इशारा मेरे साथी समझ गए होंगे, क्या ख्याल है? मैं इशारा कर रहा हूं नमाज की तरफ। जमीन पर पढ़ते रहोगे ना सुभान रब्बियल आज़ीम, सुभान रब्बियल, और फिर हालत सजदा में जमीन के ऊपर बंदा सर रख के कहता है सुभान रब्बियल आला, हे मेरे रब तू ही है बुलंदो बाला, तू ही बुलंदो बाला है। जमीन के ऊपर सबक याद कराया जा रहा है माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, ताकि पता चले जिंदगी दीन के मुताबिक गुजार, ताकि कब्र में जाए तो सवाल होगा। लेकिन दो सवाल बताएं भी जान फरिश्ते नहीं छोड़ते। बुखारी शरीफ से लेकर फिक़ह की किताबों पे चले जाएं, तीसरा फैसला कौन सवाल है, तीसरा फैसला कौन सवाल, वो सवाल क्या होगा? वो सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस पुरनूर शख्सियत के बारे में तू क्या कहता, पास्ट टेंस है, क्या कहता, कहता है नहीं, कहता हाँ। बस ये सारे जितने सिलसिले जारी हैं ना, सारे जितने सिलसिले जारी हैं, ये मदरसे बनाए जा रहे हैं, ये जलसे कराए जा रहे हैं, ये औलियाए कामिलीन की गुलामी में बढ़ा जा रहा है, ये दरूदो सलाम पढ़े जा रहे हैं, ये तसव्वुर मदीना किया जा रहा है, ये जनाब या रसूलुल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं, सैयदी मुर्शदी की सदाएं बुलंद की जा रही है, वद्दुहा के वल्लैल के तज़किरों में अपनी जिंदगी बसर करने के सिलसिले जारी हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में हाजिरियां जारी हैं, वहाँ मवाजा शरीफ के हाजिर होकर सदा बुलंद की जा रही है, यहाँ से सदा वहाँ जाकर सदा। ये सारी सिलसिले इसलिए हैं कि जैसे ही हम कब्र में जाएं फरिश्ता सवाल करे, मिलाद वाला रसूल आए, याद रसूल फौरन जारी हो जाए। ये सारी प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए बता रहा हूं, अगर चंद फुट जमीन के अंदर जाना है ना, कब्र नसीब हो जाए तो ऊंची आवाज से करो आमीन। आज साथी दुनिया है, ना जाने कहां पर जिंदगी की शाम हो जाए, इसलिए अगर कब्र नसीब ना भी हो, जहां बंदा हो वहां कब्र है, चंद फुट नीचे कब्र में जाना है, ऊपर सुभान रब्बियल आला कहते रहो, तो ऊपर रब्बियल आला कहते रहो, ऊपर दीन की मोहब्बत को सामने रखते हुए दीन पर चलते रहो, ऊपर रसूलुल्लाह के वद्दुहा के मुखड़े का जिक्र करके तसव्वुर मजबूत करते चले जाओ, या रसूलुल्लाह के नारे लगाते चले जाओ। जब खानदान वाले छोड़ आएंगे, जब रिश्तेदार छोड़ आएंगे, जब बेटे छोड़ देंगे, जब बेटियां छोड़ देंगी, जब माँ बाप छोड़ देंगे, कोई संगी दोस्त कब्र के अंदर जाने के लिए तैयार ना होगा। मिलाद वाले नबी लजपाल की अजमतों के कुर्बान जाऊं, या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों, इसलिए हम रसूल पाक की अजमतों के तज़किरे करते हैं कि हमारा नबी इतना लजपाल है, जब सब छोड़ के चले जाते हैं वो कब्र में करम करने के लिए तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तमाम हज़रात से अब आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ, आज के इस प्रोग्राम में साथ-साथ कराम मौजूद हैं इदारों के, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस इतना शुक्रिया एक रस्म, असल तो आप अपना हक अदा करते हैं, क्योंकि नबी हम सब के, आका हम। ये एक नात जो अभी सुनाई है अजीज ने, ये मैंने पार्लियामेंट के हाउस लंदन के सामने सुनाई, और वहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का 20,000 से जायद का मजमा था, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पहली अजान तारीख में लाउड स्पीकर पर लंदन के पार्लियामेंट के हाउस के सामने पड़ी गई। ये मेरे वालिद गरामी की दुआओं का सदका है और मुर्शिदीन कामिलीन की दुआओं का सदका है। तारीख में पहली अजान मुझे पार्लियामेंट
लंदन के सामने पढ़ने की सआदत हासिल और लाउड स्पीकर पे पढ़ी। और फिर वहाँ माशाल्लाह जमात हुई, वहाँ एक मनकबत जो मैंने वहाँ ये नज़म पढ़ी थी, नात पढ़ी थी, जश्न मीलादुन नबी है, जश्न मीलादुन नबी, झूम उठा है पत्ता पत्ता, हिल उठी है हर कली, लब्बैक या नबी आपके हैं उम्मती, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सबके लिए उनकी रहमत, ये जहां हो वो जहां, सबके लिए उनकी रहमत, ये जहां हो वो जहां, इसलिए पीरो जवां आए हैं सालिक यहाँ, या नबी मिल जाए तेरे दर की चाकरी। बस ये सारा मतमा नजर है हमारे सारे सिलसिले का, या नबी मिल जाए तेरे दर की चाकरी, बैक या नबी आपके हैं उम्मती, सैयदी मुर्शदी, या नबी। बाजार वाले साथी, कारोबार वाले साथी, इनका भी शुक्रिया अदा करते कि ये अपनी दुकानों पे बैठे मौजूद हैं। अल्लाह इनके कारोबार में और बरकतें अता फरमाए। और फिर गुजारिश भी ये करनी है, दीन का मरकज चल के खुद हमारे दरवाजे पे मौजूद जी, खूबसूरत एहतमाम है, जितना हम कर सकते हैं मजीद करने का इरादा है, और चाहते हैं कि इस अदारे में इस इलाके के बच्चे भी मौजूद, इस इलाके की बच्चियां भी मौजूद हो। ये याद रखें, ये नेमत है, अगर कदर नहीं करोगे तो कदर नहीं की जाएगी। अपनी नेमत अल्लाह ने औलाद की सूरत में दी है, अपने बेटों को इस तरफ लगाओ, मौलवी बेशक ना बनाओ। मैंने भी पहली दफा वालिद साहब से यही कहा था, मुझे जब मुजफ्फराबाद से फारिग हुआ तो अचानक घर पहुंचा तो बिस्तर तैयार था और चारपाई लपेट कर कि आपने बेरा शरीफ जाना है। तो मैंने कहा मैं मौलवी नहीं बनूंगा। तो मैं कब कहता हूँ तू मौलवी बन, मौलवी ना बन, दीन का खादिम बन। हजरत तो ये याद रखो, दीन सब कमियों पे पर्दे डाल देता है। दीन का जो कमी बनता है अल्लाह उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। दीन के कमी बनो, दीन के खादिम बनो, दीन की तरफ मोहब्बत रखो, अपने खूबसूरत बच्चे को दीन के नाम पे वक्त करो। खुदा के लिए ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको समझो। और दीन को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा कौन, हम नहीं सीखेंगे तो सीखेगा कौन। इसलिए अपने बच्चों को दुनिया की डिग्री कराओ, खूब कराओ, लेकिन दुनिया की डिग्री वाले कहीं बिगड़ जाते हैं, उनको साथ दीन की डिग्री कराओ ताकि डिगरे नहीं, कायम दायम रह के चलते जाएं। हमारा दीन तो इब्तदा में ही साइंस की तालीम देता है, और जितने उलूम हैं ही हमारे, लेकिन उन पर सरदारी दीनी उलूम की होनी चाहिए। फिर गमखारी होती है, ख्वारी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें प्यार अता फरमाए। और प्रोग्राम जितने भी हो रहे हैं सब में शिरकत भी फरमानी है, नियत में इखलास रखना है। कल वाला प्रोग्राम में तमाम साथियों को, दुकानदारों को, तमाम को दावत देते हैं, आए ताकि ऊपर एक जश्न का समा करें, इतना कर्मा वाला माहौल बन जाए कि बस वहाँ से लेकर मदीने तक हमारी हाजिरी लग जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन लंगर में का इंतजाम मदरसा वालों ने कर रखा है। इसके बाद इंशाल्लाह वहाँ पहले थोड़ी सी महफिल और साथ ही इंशाल्लाह लंगर। और अब मैं गुजारिश करूंगा 2 शेर सलातो सलाम के, और किबला शाह साहब दुआ फरमाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत